एवरीवन, आई एम सुहानी। वेलकम टू यूट्यूब चैनल साइंस के साथ प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2. So let's start today's video. In this video, I will teach you standard potential and Nernst equation based problems. So first, problem for calculation of standard potential. Standard potential of cell is equals to standard potential of cell at cathode minus standard potential of cell at anode. Further, formula for calculation cell potential by Nernst equation. EMF or cell potential is equals to standard potential of cell minus 2.303 RT upon NF log to the base 10 concentration of product upon concentration of reactant. E naught is denoting standard potential of cell, N is denoting moles of electron used in the reaction, F is denoting Faraday and the value is 96500 coulomb per mole. R is gas constant and its value is 8.314 joule per Kelvin mole. So at constant temperature 25 degrees Celsius, the value of 2.303 RT by F, putting R value and T value in Kelvin means 298 and Faraday value 96500, the value is come 0.0592. So formula become EMF of cell or cell potential is equals to standard potential of cell minus 0.0592 upon N log to the base 10 concentration of product upon concentration of reactant. Next, we can replace concentration of product by concentration of reactant with concentration of oxidation and the concentration of reduction. So let's move on first problem. Calculate standard potential of cell. Here cell reaction is given. Single vertical line denotes phase boundary and double vertical line denotes that salt breeze is used between two solution. And what is given? Standard potential of SN metal is minus 0.136 volt and standard potential of AG metal is 0.8 volt. To find, we have to find standard potential of cell means E naught of cell. Formula we use in this question is standard potential of cell is equals to standard potential of cell at cathode minus standard potential of cell at anode. So solution. Here Sn lost 2 electron and form Sn plus 2 means oxidation is carried out, and we know that oxidation is carried out at anode. Which metal is going in oxidation? Sn. Here Ag plus is gaining 1 electron and forming Ag means Ag metal is going in reduction and reduction occurs at cathode. हमने ये कैसे लिखा है क्वेश्चन को देख के, जैसे कि सिंगल लाइन डिनोट करता है फेज बाउंड्री, और हम ये भी बोल सकते हैं कि लेफ्ट साइड रिएक्टेंट है और राइट साइड प्रोडक्ट है. तो Sn लेफ्ट साइड में है, Sn प्लस 2 राइट साइड में है, तो उनका ऑक्सीडेशन हुआ है. कैसे कि Sn का ऑक्सीडेशन 1 है, Sn प्लस 2 का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, इसीलिए हमने रिएक्शन में लिखा है कि Sn ऑक्सीडेशन में गया है. Ag प्लस है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में Ag 0 है मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, इसीलिए हमने लिखा है कि Ag मेटल रिडक्शन हुआ है उसका, इसीलिए हमने लिखा है कि रिडक्शन हो रहा है. अब इनका स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमें दिया है डायरेक्टली, अब हमें फॉर्मूला में पुटअप करना है. तो चलो पुटअप करते हैं और देखते हैं. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ Ag का रिडक्शन हुआ है कहाँ पे? कैथोड पे, इसीलिए हमने Ag लिया है यहाँ पे मेटल, माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ Sn. यहाँ पे Sn इसलिए लिया है क्योंकि ऑक्सीडेशन एट एनोड हुआ है. यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे. Ag मेटल का दिया है 0.8 वोल्ट और माइनस एंड Sn का स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया है माइनस 0.136.
तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.8 प्लस 0.136 कमिंग 0.936 वोल्ट। सो स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल कितना है अपना 0.936 वोल्ट। सो लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। In second question, the standard potential of the electrode Zn plus 2, यहाँ पे सेल रिएक्शन दिया है, इलेक्ट्रोड मतलब सिंगल इलेक्ट्रोड का यहाँ पे रिएक्शन दिया है और उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल -0.76 वोल्ट दिया है एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड कैलकुलेट इज पोटेंशियल। अभी हमें क्या क्या दिया है गिवन वो पहले लिखना है। तो हमें पता है कि Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.2 मोलार एंड स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ Zn दिया है, Zn मेटल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया है -0.76 वोल्ट एंड हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड मतलब ईएमएफ फाइंड करना है, इलेक्ट्रोड का फाइंड करना है। ओके, तो फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, ईएमएफ निकालने के लिए हम फॉर्मूला नर्स इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोड इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड माइनस 0.0592 अपॉन n log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे रिएक्शन, तो Zn+2 गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग Zn। ये रिएक्शन कहाँ से लिखी है, क्वेश्चन में सेल रिएक्शन दिया है तो वहाँ से पता चलता है कि मेटल रिडक्शन में जा रहा है या ऑक्सीडेशन में जा रहा है। लेफ्ट साइड रिएक्टेंट होता है सिंगल वर्टिकल के एंड राइट साइड प्रोडक्ट होता है। तो लेफ्ट साइड में देखेंगे Zn+2 है, राइट साइड में Zn है, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, इसलिए रिडक्शन हो रहा है। तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे वापस से नर्स इक्वेशन का। यहाँ पे इलेक्ट्रोड कौन सा दिया है, Zn दिया है, तो ईएमएफ ऑफ Zn इक्वल्स टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ Zn माइनस 0.0592 अपॉन n log टू द बेस 10 और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर सॉलिड मेटल है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 है, इसीलिए हमने 1 लिखा है और रिएक्टेंट साइड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 लिखा है। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या वैल्यू दी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ दिया है। अभी हमें Zn+2 को ऊपर ले जाना है तो साइन में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस हो जाएगा और Zn ऊपर चला जाएगा। तो पुटअप करना है सबकी वैल्यू। यहाँ पे स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ Zn भी दिया है -0.76 प्लस 0.0592 अपॉन 2 log टू द बेस 10। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 क्या है 0.02 है और फिर लॉग निकाला है हमने, तो कितना है लॉग इसका माइनस 1.6990। तो सबसे पहले यहाँ पे ये सॉल्व करना है पूरा। तो ये सॉल्व करने के बाद डिवाइड किया है 0.0592 को, तो हमारा क्या है आंसर 0.092। फिर इनटू करना है लॉग की वैल्यू से, तो पहले की वैल्यू एज इट इज़ लिखनी है -0.76, यहाँ पे इनटू करेंगे तो माइनस आएगा और इंटू करने के बाद आंसर आता है 0.0502 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस की आएगी। तो ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोड कौन से मेटल का, जिंक का। मूव टू थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल। यहाँ पे स्टैंडर्ड गलती से लिखा है, कैलकुलेट्स ईएमएफ ऑफ सेल। तो यहाँ पे सेल रिएक्शन दी है, जैसे कि आपको पता है कि सिंगल लाइन डिनोट करता है बाउंड्री फेस और मतलब लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट राइट साइड में प्रोडक्ट। तो Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में और उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है। डबल लाइन डिनोट करता है कि यहाँ पे सॉल्व ब्रिज हुआ है दो सोल्यूशन के बीच में। तो यहाँ पे क्रोमियम 3+ फॉर्म कर रहा है क्रोमियम ओनली और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रोमियम 3+ का दिया। तो क्वेश्चन से ही हमें पता चलता है कि Zn ऑक्सीडेशन में जा रहा है, Zn मेटल ऑक्सीडेशन में जा रहा है एंड क्रोमियम 3+ रिडक्शन में जा रहा है। और हमारा टेम्परेचर स्टैंडर्ड दिया है 25 डिग्री सेल्सियस और स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ जिंक मेटल दिया है और स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम दिया है और हमें फाइंड करना है ईएमएफ ऑफ सेल।
तो यहाँ पे जो भी गिवन दिया है लिख दिया है वैल्यू, और हमें फाइंड करना है ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड करना है। तो नॉस इक्वेशन से हम ये फाइंड करते हैं। फॉर्मूला लिखा है ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। तो यहाँ पे सोल्यूशन में हमें रिएक्शन लिखनी है। जैसे पता है कि जिंक मेटल ऑक्सीडेशन में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन में कैसा होता है, जिंक फॉर्मिंग जिंक Zn2 plus by losing 2 electron. Here chromium 3 plus gaining 3 electron forming chromium. यहाँ पे लिखा है जिंक ऑक्सीडेशन एट एनोड और क्रोमियम रिडक्शन एट कैथोड। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए हमारा इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। यहाँ पे सेम नहीं है, जिंक को 2 इलेक्ट्रॉन लग रहा है रिएक्शन ऑक्सीडेशन होने के लिए और क्रोमियम को 3 इलेक्ट्रॉन लग रहा है। इसीलिए जिंक जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिडक्शन रिएक्शन उसको 2 से करेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे राइट साइड में लेफ्ट साइड में 3 Zn बचेगा प्लस 2 क्रोमियम 3 प्लस होगा। राइट साइड में 3 Zn प्लस 2 क्रोमियम होगा ओवरऑल रिएक्शन। तो हमें अब नॉस इक्वेशन यूज़ करना है। नॉस इक्वेशन क्या कह रहा है, ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 ऑक्सीडेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। तो यहाँ पे पता है कि ऑक्सीडेशन में जिंक मेटल गया है और हमें रिएक्शन में देखना है कि वहाँ पे कोएफिशिएंट दिया है 3 Zn प्लस 2, और हमें अगर कोएफिशिएंट में इनटू है, जब हम उसको फॉर्मूला में लिखते हैं तो जो नंबर इनटू में है वो रेज टू पावर में चला जाता है। क्रोमियम रिडक्शन में गया है और इसके साथ कोएफिशिएंट 2 था, इसीलिए वो रेज टू 2 में चला गया। अभी सबकी वैल्यू पुटअप करनी है यहाँ पे, पर यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल नहीं दिया है। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल फाइंड करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल का फॉर्मूला यूज़ करना है। वो क्या है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल कैथोड माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल एट एनोड। तो हमें पता है कैथोड पे रिडक्शन मेटल जाता है तो क्रोमियम लिखेंगे, ई नॉट ऑफ क्रोमियम माइनस ई नॉट ऑफ Zn। इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे। यहाँ पे वैल्यू दिया है माइनस 0.763 माइनस और माइनस 0.74। कैलकुलेट करेंगे तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल हमें मिलेगी ये वाली वैल्यू, और जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दी है वो पुटअप करेंगे नॉस इक्वेशन में सारी वैल्यू। जैसे कि ई नॉट की वैल्यू मैंने पुटअप की 0.03 माइनस ये वैल्यू एज इट इज़ 0.0592। यहाँ एन की वैल्यू 6 है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ हुआ है, और लॉग टू द बेस 10 यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 दिया है क्वेश्चन में 0.08 और रेज टू पावर 3, और क्रोमियम का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.01 रेज टू पावर 2। ये कैलकुलेट करना है। पहले लॉग की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट कर रही है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद 0.0512 का लॉग निकालना है नेक्स्ट स्टेप में। तो लॉग निकाला है तो क्या है माइनस 2.2907, और फिर उसके बाद से हमें यहाँ से 0.0592 को 6 से डिवाइड करना है। 6 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको लॉग की वैल्यू से इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आया, प्लस में आंसर है प्लस 0.0226। अब इनकी एडिशन कर देनी है और ईएमएफ ऑफ सेल मिल जाएगा हमें 0.0456 वोल्ट। ओके, ये हमारा लास्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें ईएमएफ निकालना था और ईएमएफ हमारा निकल गया है। तो अगर हमें ओनली ईएमएफ पूछा है तो हम नॉस इक्वेशन मतलब सॉल्व करेंगे। अगर हमें बोला गया है कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ, तो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनोड। अगर स्टैंडर्ड ईएमएफ पूछा है तो वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, और स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड करना है तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे।